Yes. So today we will be having a case study on Karnini Univapath. Like when we are an OPD and when we get a patient of Karnini Univapath, what would be the symptoms she'll present to us and how we have to approach to these cases. Like what are the things we should take into consideration when we are seeing such kind of a patient. So first, I think everyone knows a brief intro about Karnini Univapath, and then we will see how the case has been coming to us. Like commonly the patient comes to us with white discharge and there is like burning sensation or there is pain in the back. These are the common symptoms. And what I suggest you is like whenever a patient comes to our OPD with a white discharge of at least they tell it's a chronic like 3 months and all, immediately we should always keep in our mind to go for a per speculum examination. What happens when we are in the OPD? We get a patient of white discharge, we will tell, okay, uh, first you take these medications, then we shall see. This is common what every doctor does in the OPD. But if the patient comes with a complaint of saying, I'm having white discharge since 3 months or 4 months or more than a month, there is continuous white discharge, there is burning sensation, there is blood stain white discharge. Like sometimes there is a staining in the white discharge or my undergarments gets stained like that. If the patient comes and complains to us, it is always better to go for a per speculum examination. For example, in your OPD, if you don't have any examination set or you have not kept it or there is no facility, it's small clinic is there. Like sometimes we will be having like visiting clinics. Then what we can do? If the patient is affordable or there are diagnostic centers in and around, I suggest send the patient to colposcopy or a gynecologist who is nearby for an examination. What is there? If you cannot do, at least ask someone to get it done. It is always better that we do in our OPD and we examine and get a diagnosis with what is the condition and then proceed. There are also different conditions. Differential diagnosis is also important to understand in such kind of cases. Now coming to the complaints, what we see is like it's a very common complaint. White discharge is a very common complaint, and cervical erosion most of the times goes unnoticed or undiagnosed. We just feel it's a normal white discharge and we live it. What is happening is if we don't diagnose or we don't examine, basically we suggest any woman more than 30 years or 35 years compulsory do a per speculum examination whenever she comes to our OPD with a white discharge, and make a routine of asking questions. Any female patient comes to our OPD, we should have a routine of asking, how is your menstrual cycle? Do you have any discharge? Do you have dysmenorrhea? Do you have back pain during your menstruation? Do you have any discharge post menstruation? Is there any excess amount of white discharge or irritation, pruritus before your menstrual cycle? These questions should be a routine thing. And also breast examination, we should educate the patients so as to screen the malignancy or with cancer patients. Basically, we want to prevent malignancy because of its rate which is increasing in day-to-day practice. We should be a responsible physician or a gynecologist for preventing the malignancy in females. This should make it's a practice what we have to make in our OPD. Whenever a female patient, even adolescent girls or young girls who are college going girls, whoever comes to our OPD with any complaints or some other complaints, we should have this questioning or prashna pariksha with normal menstrual cycle, menarche, discharges. All these things has to be always there, and educate post 30 years women for breast examination, and also keep a observative things during her if any white discharge and all is there. So if there is any chronic more than 1 month, you have to go for per speculum examination. Do not just let go the things. Okay, अभी मेडिसिन दे देंगे, देखेंगे बाद में. Don't do that. Don't never do that. You examine. Examination is very important so that you do not miss the diagnosis. Okay. Then Yoni-Vapeth, if not diagnosed and not treated properly on time, will lead to complications like infertility and also malignancy. Okay.
So, Karnini Yonivapat के बारे में we will have some brief intro, like what it is. So, what our Acharya has told, Akala Vahamanaya Garbhine Pihito Anilaha, Karnika Janayet Yono, Shleshma Raktena Murchitha, Raktamargam Avarodhitya Sataya Karnini Mataha. So, क्या होता है Akala Vahamanaya, like when there is no pain and the woman pushes the baby, what will happen? The Vata will get vitiated, thereby that Vata vitiates the kapha and rakta there, causing utpanna of the karnika. Okay, and it is called karnini yonivyapa. Here, Chakrapani tells akale vahamana ityadi aprapta garbha nishkramana kale. अप्राप्त गर्भ निष्क्रमण काले, जब देर इज नो पेन, उस टाइम पे अगर वो वुमन पुश करेगी या फिर फोर्स डालेगी तो वहां पे कर्णिका उत्पन्न हो जाएगा. सो कर्णिका इति कर्णिकाकारम ग्रंथि. क्या बोलते हैं, कर्णिका कैसा है, कर्णिकाकार का आकार में है और वो उस टाइप की ग्रंथि को कर्णिनी कहते हैं. ठीक है. देन आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, कर्णिन्याम कर्णिका योनो श्लेष्म अनुस्रवम प्रजायते चतुश्रुति चाद्यासु श्लेष्म लिंगो चतुर्भवेत्. इसके साथ देर आर श्लेष्म लिंगम, दैट इज कंडू और पेचिल्ल स्राव होता है. ओके, श्वेत पैचिल्ल स्राव. तो निदान संप्राप्ति में कैसे है, अगर गर्भिणी स्त्री द्वारा अकाल प्रवाह माना हो गया तो वहां का वायु प्रकोपित हो जाता है, और प्रकोपित वायु क्या करता है, कफ और रक्त को के साथ मिलकर वहां पे मांसाकृति, दैट इज मांसकंद या फिर कर्णिकाकार की ग्रंथि को उत्पन्न करता है, उसको हम कर्णिनी योनिव्यापत कहते हैं. सो मधुकोश में मांसकंद कार ग्रंथि ऐसे बताया है उसको, और भाव प्रकाश में मांसस्य कर्णिका आकारो ग्रंथि, ढलन टीका में मांसकंदी, चक्रपाणी ने कर्णिकाकार ग्रंथि, और इंदु टीका ने पद्म कर्णिका तुल्य मांस अंकुरम, मांस अंकुरम छोटा छोटा जो अंकुर के जैसे दिखता है उसको बताया है. और आचार्य चरक ने उसको वात कफ दोषज कहा है, आचार्य वाग्भट ने वात कफ दोषज, और सुश्रुत ने कफ दोष प्रधानतः दृष्टि होता है ऐसे वर्णन किया है. तो ये वही श्लोका है जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं सर्वाइकल एरोजन विथ इन्फेक्शंस को. ओके, तो कर्णिनी योनिव्यापक सर्वाइकल एरोजन को हम अगर कोरिलेट करेंगे तो इसमें क्या होता है, अंदर का एंडोसर्विक्स जो रहता है, एंडोसर्विक्स में का कॉलमनर एपिथेलियम रिप्लेसेस द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एक्टोसर्विक्स, एंड द स्क्वामस कॉलमनर जंक्शन जो रहता है, इट इज लाइक हार्मोन डिपेंडेंट. व्हेन देयर इज मोर ऑफ एस्ट्रोजन इट कीप्स मूविंग द जंक्शन, इट मे कम आउटसाइड, इट एवर्ट्स आउटसाइड. So that is where we call it is an erosion of the squamous epithelium, where it is been replaced by the columnar epithelium of the endocervix. And see, it is physiological in case of pregnancy, and it reverts back to its normal position post 3 months of the delivery. It will take some 8 to 10 weeks for, or maximum 12 weeks to revert back to its normal position. Or pill users like who is taking OCP pills, in them also we can see, but we have to stop the lady to not take the OCP so that the reversion of the cells happen, and we should advise them to go for barrier method like condom use करने के लिए उनको बताना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या करते हैं, सर्वाइकल एरोजन बिकम्स हाइपरट्रोफिक कंजेस्टेड एंड कवर्ड विथ स्मॉल रेड प्रोजेक्शंस रिजेंबलिंग लाइक स्प्राउट्स. कैसे होता है वो, हाइपरट्रोफिक कंजेस्टेड लाल जैसा, और उसको एक बाउंड्री बनता है यूनिफॉर्म, ऐसे बाउंड्री बनकर उसको रेडिश दिखता है, उसका हम इमेज आपको बताएंगे. और वहां पे छोटे छोटे एक क्या बोलते हैं स्प्राउट्स टाइप प्रोजेक्शंस विल बी सीन, और नेबोथियन सिस्ट भी हो सकते हैं वहां पे. और उसको आचार्य ढलन ने टीका ने सॉरी टीका इंदुकार ने क्या कहा है, इट इज पद्म कर्णिका तुल्यम करके एक्सप्लेन जो दिया है उसको वो सूट करता है, जो हम देखते हैं व्हेन वी डू एन परस्पेक्युलम एग्जामिनेशन एंड व्हेन वी सी इट रिजेंबल्स टू दैट. Then cervical erosion commonly occurs or often occurs during pregnancy and reverts back after 3 months of delivery, and it is because of the estrogen dependency. And ये जो होता है इफ ड्यूरिंग स्ट्रेन लाइक अकाल वाहमानाय
what is being told during that time, that when there is a cervical tear which may happen, will replace during the healing time. What will happen, that columnar epithelium replaces the squamous epithelium, which is on the outer part at the squamous columnar junction, which spreads out and forms a erosion outside, that is called cervical erosion. ठीक है। देन रक्त मार्ग अवरोधिन्य जो बताया है, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि it is narrowing of the cervical os because of the congestion or the edema, because of kapha and rakta getting vitiated along with the vata, it may narrow the cervical os. And this thick secreted, वहां पे जो secretion आता है कफज, that is पैच्छिल्य and कंडु युक्त जो स्राव आता है, it is very thick in consistency and it hinders the entry of sperm, thereby leading to infertility, वंध्य हो सकता है। इंदु टीकाकार ने कर्णिनी योनि व्यापक को एक्सप्लेन करते टाइम में बताया है कि वो वंध्य होता है, दैट इज व्हाट ही विल टेल, गर्भाशय द्वारा संवृत्तिकरम अत एव निषक्तस्य शुक्रस्य अप्रतिग्रहात् गर्भो न जायते इति भावः। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया है कि बिकॉज ऑफ कर्णिनी योनि व्यापक द गर्भाशय द्वारा संवृत्तिकरण छोटा हो जाएगा और शुक्र इज नॉट एबल टू एसेंड अप, देयर बाय कॉजिंग वंध्य। ठीक है, द गर्भ डजंट गेट फॉर्म्ड। ओके, देन चिकित्सा में बताया है कि वहां पे जीवन या द्रव्य के सिद्ध तैल से उत्तरवस्ती देना है। वर्ती धारण हैज बीन एक्सप्लेन्ड, कुष्ठ पिप्पली अर्काग्र सैंधव बस्त मूत्र में पीसकर उसकी वर्ती बनाना है। कफ हरा चिकित्सा इज बीन एक्सप्लेन्ड। नाउ व्हेन वी आर इन ओपीडी, ओके, when we are in OPD and how the patient may come to us, this is now I think everybody has understood what basically is the कर्णिनी योनि व्यापक, है ना। क्या रहता है बेसिकली, वात दुष्टि हो गई है, कफ और रक्त वहां पे उसके साथ में विषेट होकर स्थानित cervix, that is at the yoni mukham, there is formation of padma कर्णिकाकारम और कर्णिका कार ग्रंथि और मांसांकुरा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो दिया है, which resembles to the examination जब हम करते हैं and we see there is formation of an erosion which resembles to what we have in our कर्णिनी योनि व्यापक explanation, है ना। तो अगर पेशेंट हमारे यहाँ आया और उन्होंने हमको वाइट डिस्चार्ज है, that is what I was trying to tell, like if it is at least there are different type of white discharge, okay, sudden onset हो सकता है या जो है बहुत एडोलसेंट एज में फिजियोलॉजिकल है, जो पीरियड्स के पहले आता है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्रोजेस्टेरॉन बीइंग देयर, the pattern which changes, and then also there is physiological white discharge. During pregnancy there is mild white discharge. These all white discharge which are physiological has to be first kept into our mind, and also if the patient comes with a physiological white discharge, we have to first explain them. See, these are the conditions in physiological things and they are common, it will go on its own. Adolescent में अगर white discharge आया तो हमको वहां पे we have to educate the girl to see, because you are not eating proper calcium और उसको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट बराबर से नहीं मिल रहा है, वेग धारण कर रहे हैं, तो वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि सी यू हैव टू हैव प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा कैल्शियम का इंटेक आपको करना है, नहीं तो बैकएक एनीमिया से भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो ये एडोलसेंट एज में आएगा। तो रिप्रोडक्टिव एज में दिस इज कॉमन, कर्णिनी इज कॉमन, हु इज टेकिंग ओसीपी पिल्स or who has delivered and there is a history of delivery in 1 year and still it has not healed. Commonly हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी ही होता है, लाइक पहले डिलीवरी होने के बाद ही ज्यादातर हम लोगों को कर्णिनी योनि व्यापक जैसे सर्वाइकल एरोजन जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। और इट्स लाइक द वन हु इज टेकिंग ओसीपीज, इन देम आल्सो इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, और अगर कर्णिनी भी रहा or it is erosion or whatever it is, irrespective of the lesion there, you have to take a vaginal smear, pap smear test करना ही है। there is no other अभी रहने दो, देखेंगे बाद में करेंगे, you should never do that. Whenever such cases are there, make a point, you at least
send for vaginal pap smear or cervical pap smear, or you do it by yourself. Take a at least swab to take it, see for the cell cytology, vaginal cell cytology, या फिर pap smear टेस्ट के लिए कंपलसरी भेजना है. अगर पेशेंट अफोर्डेबल है, अच्छा खासा पैसा है, तो उनको कॉल्पोस्कोपी के लिए भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, सो दैट वी विल गेट अ क्लियर कट पिक्चर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेल्स आर देयर एंड इट विल रूल आउट मैलिग्नेंसी. ये एक हेल्प है, यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी. आप इतना डायग्नोस भी करके देंगे ना, तो भी बहुत बड़ा है, बिकॉज वी आर सीइंग सर्वाइकल मैलिग्नेंसी कमिंग टू अस इन सेकेंड और थर्ड स्टेज ऑफ द condition, where patient is totally so much, some metastatic changes also might have happened. So we have to rule it out. We want to prevent that. At least starting stage में ही अगर हम उनको help करेंगे, तो the life span of that patient will be better. The lifestyle also we can modify, and also we can advise the patient what to be done in next steps. We can at least refer them to the tertiary centers, get operated if at all they want to go for hysterectomy. Let them come back. We have so many good medications, so that we can help them out. Instead of chemotherapy, we can start with our medications. तो ये आपको कंपलसरी फिजियोलॉजिकल कब रहेगा, पैथोलॉजिकल कब रहेगा, इन व्हाट एज वी कॉमनली फाइंड दिस. 30 years to 45 years इज द कॉमन केस. एंड पोस्ट मेनोपॉजल में कैसे आएगा पेशेंट. तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ वाइट डिस्चार्ज का जो है, वो हम आगे क्लास में फिर देखेंगे, लाइक वाइट डिस्चार्ज कहाँ कहाँ पे. लेकिन अभी कर्णिनी का जो हम लोगों को केस है, तो उसमें पेशेंट हमारे पास कैसे आएगा, और वो यूजुअली कैसे रहता है, सडन ऑनसेट नहीं रहेगा, वो रहेगा एक 3-4 महीने से रहेगा, या फिर वो आके आपको कहेंगे कि हमको पहले ना इतना कभी था नहीं, डिलीवरी के बाद थोड़ा ज्यादा हो गया है, or the OCP pill taking woman or that female will come and tell, I had never any problem with the white discharge. I don't know, recently since like 1 month or 2 months, I'm like repeatedly getting white discharge. There's also like burning sensation I feel, and whenever I get my periods, I feel like it is so burning and all. This is what the patient comes to our OPD and gives the complaint. So here in this case presentation, what has happened? A female of 33 years had come to our OPD with complaint of excessive white discharge per vagina and itching associated with burning micturition and low back pain since 6 months. And it was affecting her daily routine activity since 4 years. तो ये ज्यादा कब हो गया है, 6 मंथ से था, फिर 4 ईयर से ये आ रहा है जा रहा है, लाइक इट इज इंटरमिटेंटली डिस्टर्बिंग हर, for which she has taken treatment in contemporary science, and she also has a history of secondary infertility. Such a classical case, जो इंदु टीकाकार ने बताया है. तो because of that secretions or that erosion, she is having issue. See, since 4 years she is having, but nobody has even attempted to go for a perspicuum examination. तो यहाँ पे कितना मिस डायग्नोस होता है. यूजुअली ऐसे होता है, इवन हम भी कभी कभी ओपीडी में बहुत पेशेंट है, तो हम ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है अभी आप ये मेडिसिन ले लो, एक 10 दिन के बाद देखेंगे. 10 दिन में वो अगर वाइट डिस्चार्ज कम हो गया, तो पेशेंट तो आएगा ही नहीं. तो what will happen, we will miss the diagnosis. So we have to at least, आपको बहुत रश है, उस दिन नहीं हुआ, तो आप पेशेंट को बोलो टेस्ट तो करना पड़ेगा ही, आपको आना ही है. एटलीस्ट एक 2-3 दिन का ही मेडिसिन देके वापस उनको एक टाइम स्लॉट डाल के उनको वापस बुलाइए, डू अ परस्पेक्युलम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन अभी देखिए, तो ये सिंस 4 years शी इज हैविंग इंटरमिटेंट इश्यूज एंड शी इज टेकिंग ट्रीटमेंट एंड हैविंग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी विद द अबव कंप्लेंट्स. देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री रेगुलर है, 4 दिन with 28 to 30 days of the cycle. Obstetric history P1 L1, 2 बार abortion, full term normal delivery of 4 years. पर्सनल हिस्ट्री, वेग धारण करते हैं वो, दिवा स्वप्न और दधी सेवन, शी इज डूइंग दधी सेवन डेली. Then हम perspiculum, when we do, she is having white discharge, there is cervical erosion, and uterus is antevated normal size, 4 nurses on both are free, and there is no cervical motion, 10 ns. तो हमने यूरिन टेस्ट भी किया, एल्बुमिन नील, शुगर नील, पसस 10 to 12, there is mild infection, which also lets us to know there is cervicitis, okay, and RBC is nil. अष्टविधा परीक्षा किया, तो नाड़ी 76 है, मूत्र 5 से 6 बार जाते हैं, बर्निंग है उनको,
मल कॉन्स्टिपेटेड है, वात प्रकोप हो गया है, जीवा लिप्त है, शब्द स्पष्ट है, स्पर्श अनुष्ण शीत द्रुप प्राकृत आकृत मध्यम है। दशविध परीक्षा में वो वात प्रधान पित्त प्रकृति की थी, विकृति कफ हो गया है, सार मध्यम, समनन मध्यम, प्रमाण मध्यम, सात्म्य मध्यम, सत्व मध्यम, आहार शक्ति मध्यम, व्यायाम शक्ति हीन। उनको ज्यादा काम करने को नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस बैक पेन एंड हैविंग द डिस्चार्ज, एंड वयाशी इज मध्यम। तो हम इसको एज द डायग्नोसिस हम उसको सर्वाइकल एरोजन कर रहे हैं। कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम उनको डायग्नोस करते हैं कि वो सर्वाइकल एरोजन है? पैच्छिल कंडवादिक्य, वहां पे कंडु भी है और इट इज पैच्छिल। देन श्लेष्म लिंगोच्छतिर्भवेत्, पैच्छिलम शीतम कंडुग्रस्तम अल्प वेदना पांडुवर्णम तथा पांडु पिच्छिल आर्तव वाहिनी। तो स्टिकी म्यूकोइड वाइट डिस्चार्ज जो है उसको हम इसके हिसाब से ये सर्वाइकल एरोजन कह रहे हैं। और अकाल वहामानाय गर्भिणो पीतो अनिल, तो शायद उस औरत ने ड्यूरिंग हर नॉर्मल डिलीवरी शी might have pushed when there is no pain, and it can be correlated to cervical erosion. Complication of Univapath being one day she is having secondary infertility. Okay. तो इंटरवेंशन यहाँ पे हमने देखा था कि वर्ती यूज करने का बताया है, और श्लेष्महर चिकित्सा इज सर्वम कुर्यात, इसमें श्रेष्ठ चिकित्सा इज गफहर, श्लेष्महर चिकित्सा करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, त्रिफला कषाय से योनि प्रक्षालन करके पंचवल्कल कषाय का पिछू रखा है 7 दिन के लिए, और त्रिफला कषाय और पंचवल्कल कषाय इज हैविंग शोधन एंड रोपण प्रॉपर्टीज, इसलिए उसको हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है। तो ओरल मेडिकेशंस हम लोगों ने चंद्रप्रभावटी दिया है 2 TID बिफोर फूड विथ हॉट वाटर या वार्म वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग त्रिदोषग्न बल्य एंड रसायन। लोद्रासव और दशमूल अरिष्ट 30 ml TID आफ्टर फूड फॉर 1 month दिया था। एक कैप्सूल फेमलिन करके आता है अजमेरा कंपनी का, उसमें अभ्रक भस्म है, कंकोला, अशोक, लोद्रा, अश्वगंधा, माक्षिक भस्म, लोह भस्म, गोक्षुर, माजुफल, हीराबोल, शतावरी, स्फटिक भस्म, त्रिवंग भस्म और दारू हरिद्रा है। तो इसको ऑल ये जो कंटेंट्स है दे आर वात कफ दोषहर एंड गुड हीलिंग प्रॉपर्टीज, सो 2 TID आफ्टर फूड दिया है इसको। तो 1 month के बाद आफ्टर 1 month द वाइट डिस्चार्ज एंड इचिंग reduced completely, जो था वो completely reduce हो गया। बर्निंग मिक्चुरेशन reduced in 2 days, उसको बर्निंग मिक्चुरेशन था ना, तो विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट इट हैज reduced। सर्वाइकल एरोजन हीलिंग वेल, अच्छा हील हो रहा है बिकॉज इट विल टेक टाइम, एंड वी गिव सिम्टोमेटिक रिलीफ। अभी मेडिसिन और चालू है। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशन में हम देखते हैं कि योनि प्रक्षालन एंड पिचू with Shodhana and Ropaniya Dravya facilitate blood circulation and destruction of the columnar epithelium and epithelialization of the healthy stratified squamous epithelium and ectocervix। ठीक है। योनि प्रक्षालन से because of the त्रिफला which is having कषाय रस प्रधान, रूक्ष सरगुण, अनुष्ण, मधुर विपाक, त्रिदोषग्न, व्रणारोपण। ठीक है। व्रणारोपण योनि गुल्म नाशन is known for anti-inflammatory free radical scavenger, मेन वहां का जो सेल्स रिप्लेसमेंट करना है हमको, तो स्कैवेंज करना है, लेकिन हम करके उसको नीचे से सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम को रीजनरेट करने के लिए ट्राई करना है। तो इसके हिसाब से हमने क्या लिया है, त्रिफला कषाय को ड्रग ऑफ चॉइस बनाया है। और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसका, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एनहांसिंग फैगोसाइटोसिस, एंटी कैंसर लाइक प्रॉपर्टीज। बाय चांस CIN1 था तो हमको अगर मिस हो गया तो वो भी त्रिफला कषाय से हेल्प हो जाएगा, तो हम लोगों ने त्रिफला कषाय लिया था। फिर पंचवल्कल जो है हैविंग कषाय रस कफ पित्तहर शीत गुण व्रणरोपक, अभी हम लोगों ने क्या किया, स्कैवेंज कर दिया। ठीक है। तो उसको हमको व्रणरोपक करना है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज से। और योनि दोषहर, वो ऑल योनि दोष भी कम करता है, तो उसके कंसिडरेशन में हम लोगों ने पंचवल्कल कषाय का क्या किया है, पिछू बनाया है। हाँ। और वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, वहां पे सर्विसाइटिस था क्योंकि हमने देखा इन्फेक्शन है, पसल्स है, तो हमने क्या किया, एंटी इंफ्लेमेटरी का पिछू बनाया। फिर क्या किया, स्कैवेंजिंग किया और ब्लड सर्कुलेशन। इवन पंचवल्कल इज नोन फॉर स्कैवेंजिंग एक्टिविटी, ऑक्सीजन ड्रग्स। फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया,
टू एनहांस द रोपण एक्टिविटीज। हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा, वो हील होना शुरू हो जाएगा। पहले स्कैवेंज करेंगे त्रिफला कषाय से, और वो रोपण भी है। उसके साथ हम लोगों ने पंचवल्कल का पिछू रखने से वो अच्छा हेल्प होता है। कभी कभी क्या होगा, अभी दो दो कषाय बनाने को नहीं होगा कभी, तो हम क्या कर सकते हैं, वी जल आता है हिमालय का, तो वो भी पंचवल्कल का ही है। पेंटाफाइट आता है जो, वो भी पंचवल्कल का ही ऑइंटमेंट है। फिर आता है ग्राब, उसमें करंज है। नहीं तो जात्यादि तैल पिच्छू भी हम रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जात्यादि तैल का रोपणार्थ है, तो त्रिफला कषाय से हम प्रक्षालन करेंगे, वो भी रखेंगे। या फिर अपमार्ग क्षार तैलम, उसका भी बहुत स्टडी है। अपमार्ग क्षार तैलम, दैट ऑल्सो वी कैन मेक अ पिक्चर एंड कीप इट on that part, and then immediately remove and then put again जात्यादि तैलम, अल्टरनेट हम ऐसे कर सकते। सुबह में अगर हम अपमार्ग क्षार तैल का पिच्चू रखेंगे, तो शाम में उसको 2 घंटे के बाद वो निकालते हैं ना, तो शाम को आएंगे तो वहां पे जात्यादि तैल का पिच्चू रखेंगे, तो भी वो हील हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जितना वो एरोजन है वो देख के उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा तेल कितना कब रखना है, और कौन सा कषाय हम उसको डाल सकते हैं। नहीं तो भी हम कॉमनली वाइट डिस्चार्ज में त्रिफला लेती है, लेकिन इन एरोजन दिस बीइंग रोपणीय द्रव्यम एंड स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी बीइंग श्रेष्ठतः वी यूज त्रिफला कषाय। अभी पंचवल्कल में क्या है, टैनिन्स है। इट कंटेन्स टैनिन्स व्हिच हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, प्रोसेस्ड बाय वुंड कॉन्ट्रैक्शन विद इंक्रीज्ड कैपिलरी फॉर्मेशन। तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होने से ग्रैनुलेशन प्रॉपरली होके अंदर से वो स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो एक्टो सर्विक्स में रहता है, वो ठीक से हो जाएगा। ओके, इट आल्सो कंटेन्स फ्लावोनॉइड्स एंड अल्कोलॉइड्स व्हिच इनहिबिट्स वासोडाइलेशन एंड वास्कुलर परमिएबिलिटी, देयरबाय रिड्यूसेस द एक्सुडेशन फ्रॉम द वुंड, है ना। अगर वुंड बना है, फॉर एग्जांपल क्रायोसर्जरी, अभी मॉडर्न में हम ट्रीटमेंट देखेंगे तो क्या है उसमें, थर्मल कॉटरी है, क्रायोसर्जरी है, लेजर है। तो वो करने के बाद स्लफिंग होता है। अगर हम ये पिछू बना के रखेंगे आफ्टर प्रक्षालन, तो वहां पे स्लफिंग भी नहीं होगा, डायरेक्ट हीलिंग है। क्षार तेल से आप थोड़ा सा उसको और थोड़ा स्क्रिपिंग के लिए रखेंगे, फिर बाद में हम पंचवल्कल का कषाय भी रख सकते हैं शाम में, या फिर जाते भी रखेंगे, तो वहां पे एक्सुडेशन भी ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो दैट वी हैव टू understand how the dravya will work according to dosha। okay, फिर चंद्र प्रभावटी त्रिदोषज्ञ बल्य कंडुग्न कंडुग्न, है ना, और योनि दोषज्ञ is good in healing the erosion and reduces inflammation. लोद्र having कषाय and तिक्तरस लघु रुक्ष गुण शीत वीर्य कटु विपाक कफ पित्तज्ञ properties in गर्भाशय शोतहर। लोद्र शोतहर सर्व रोगहरम, सर्व स्रावहरम, सॉरी स्रावहर मीन्स बिकॉज वहां पे जो आ रहा है सिक्रेशंस जो हो रहा है वो कम करेगा, स्तंभन करेगा, कंडुग्न। एंड पेस्ट ऑफ लोद्र विथ न्याग्रोध तो कषाय इज रेकमेंडेड इन श्वेत प्रदर इन आचार्य चरक चिकित्सा स्थान 25th चैप्टर 67 श्लोक, वहां पे उसका वर्णन आया है। तो हम उसको ध्यान में लेते हुए हमने वो रखा था, ठीक है, लिया था, लेकिन इंटरनल दिया था। फेमलिन में अभ्रक है। अभ्रक जो है वो कषाय मधुर रस है, स्निग्ध शीत मधुर विपाक है, और त्रिदोषज्ञ है, और इट इज अ पावरफुल सेलुलर रीजनरेटर। इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ द सेल्स एंड इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी एफ्रोडेसिक। सो दोनों में वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है ना, तो वहां पे भी हेल्प हो जाएगा। माक्षिक जो है मधुर पित्त कषाय रस लघु शीत मधुर विपाक पित्त प्रधान त्रिदोषज्ञ एंड इट एक्ट्स ऑन leukorrhea, burning micturition, angiogenesis and in anti-inflammatory, है ना। तो it is भस्मस are very good। त्रिभंगा is known for anovulation and infertility में हम यूज करते हैं, beneficial in leukorrhea। स्फटिका जो है उसमें वो कषाय कटु आम्ल रस स्निग्ध गुरु उष्ण लेखनीय व्रणरोपणीय एंड रीएपिथलाइजेशन और बैक्टीरियोस्टैटिक में यूज करते हैं। स्फटिका जो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, कट्स हो गया कुछ भी हो गया तो वही लगाते हैं ना ये बार्बर्स में, वो सभी। तो इट इज नोन फॉर व्रणरोपण और रीएपिथलाइजेशन में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन स्कैवेंजिंग ऑफ द सेल्स एंड एपिथलाइजेशन ऑफ द न्यू हेल्दी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम।
तो ये देखिए, ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट लिया था हमने। स्टार्टिंग में तो बहुत ही खराब था, फुल रेड था, ये उतना क्लियर नहीं आया है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वाला। आफ्टर ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं कि वाइट डिस्चार्ज तो पूरा चला गया है। वजाइना हैज बिकम फुल हेल्दी ऑन द साइड्स, और इवन द एरोजन इज स्लोली गोइंग बैक इनसाइड। सो दिस वाज आफ्टर ट्रीटमेंट एंड स्टिल द मेडिकेशंस आर गोइंग ऑन। एंड ये ऐसे और एक सर्वे एरोजन पे एक जो स्टडी मिला था, वहां पे उन्होंने त्रिवृत नहीं, वहां पे उन्होंने क्या किया है, प्रक्षालन विद त्रिफला क्वाथ और जात्यादि तेल का पिच्छु दिया है, और इंटरनली प्रद्रांत कलोह त्रिफला गुग्गुड़ु और शतावरी वटी पुनर्नवा मंडूरा उनको शमन चिकित्सा के लिए दिया है। तो वहां पे भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट मिला है। और एक केस स्टडी में लिखा है कि ये जयपुर में किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, त्रिवृत लेह से उनको विरेचन दिया है, और उसके बाद में अपमार्ग क्षार तैल से योनि पिछू रखा है, एंड त्रिफला गुगड़ू उनको शमन चिकित्सा के लिए दिया था। तो वो भी अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है। आपने अभी पंचवल्कल के अलावा जो हम ड्रग्स ले सकते हैं पिच्चू के लिए, आप एक बार प्लीज उनके नाम बता सकते हैं? वीजेल जो आप। कर्णिनी में और क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं फॉर हाँ पिछू? जी, हाँ जी। या फॉर पिछू ना? अच्छा। तो पिछू के लिए हम एज वी सॉ लाइक पंचवल्कल का कषाय का पिछू बनाया था, जात्यादि तेल रख सकते हैं। अपमार्ग क्षार तैल सुबह में रखेंगे पिछू के लिए, फिर निकाल देंगे थोड़ी देर के बाद, बिकॉज इट इज अ क्षार तैलम। और उसके बाद फिर से जात्यादि तेल रखेंगे, तो उसका वो क्षार तैल का जो रुक्षता है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में इवन हमने जेल्स विच आर अवेलेबल, लाइक वी जेल जो हिमालय का आता है, फिर आएगा पेंटाफाइट आएगा, फिर उसके बाद में पेंटाफाइट इज पंचवल्कलम, देन इवन शतधौत घृत विथ पंचवल्कल इज अवेलेबल। वो भी आता है शतधौत घृत प्रोसेस्ड विथ